Good morning to all my dear students. Today again we are going to start a chapter that is crop production and management. So in our previous lecture what we have discussed about the harvesting. What is harvesting? In harvesting we have discussed that harvesting is simply the cutting and gathering of mature crop in which we have to separate the grains from its chaff particle, we can say. So here we will discuss the implement, that which implements we have to use during the harvesting. Implements. See, in case of implements we have two main implements. First, that we have to cut a crop the manually, like with the help of a sickle. We can see in our farm, in a field, कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या फिर जो मजदूर लगाते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली दराती से सिकल की हेल्प से मैनुअली हमारी क्रॉप की कटिंग करते हैं. दैट मीन्स द फर्स्ट मेथड इज विद द हेल्प ऑफ सिकल इन विच मैनुअली कटिंग इज देयर. एंड सेकेंड ऑप्शन इज कंबाइन मशीन. Everybody know this because nowadays combine machine is going to more popular day by day. Because what is the main use of the combine harvest or combine machine during the harvesting of a crop? Because we can complete our all the process with the help of a single machine only. And what are those process? Like if we talk about the reaping, threshing and winnowing, means all the process we can complete with the help of our combine machine. So that's why nowadays combine machine is going to popular nowadays डे बाय डे. ओके, मीन्स क्यों पॉपुलर है? क्योंकि एक ही मशीन की हेल्प से हम सब कुछ कर सकते हैं. मीन्स लाइक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, थ्रैशिंग कर सकते हैं. थ्रैशिंग मीन टू से इन विच हम ग्रेन्स को चैफ पार्टिकल से सेपरेट कर लेते हैं और विनोइंग हो जाती है. ओके, सो ऑल दिस प्रोसेस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कंबाइन मशीन. सो दीज आर द इम्प्लीमेंट्स विच वी हैव टू यूज ड्यूरिंग आवर हार्वेस्टिंग सिस्टम. Now we will discuss our last agricultural practices, and that last agricultural practice is the storage and pest control. Storage and pest control. See dear student, after harvesting we need to store our crop or we need to store our grains. So first of all, so during storage we have to store our crop or grains in the huge granaries and silos, and which should be airtight container. And during the storage we need some protection, because just we have to protect our crop from the spoilage, like from insects and rat, we can say these are the pests. So we have to prevent our soil from spoilage, we can say. Secondly, what are the pest controls? See here, स्टोरेज के टाइम हमें पता है कि हमें कहाँ पर उसको स्टोर करना है, जो बिग ग्रेनरीज और सिलोज होती हैं. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मीन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज हमें क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हमारी जो क्रॉप की स्टोरिंग है वो किसी भी तरीके से स्पॉइल ना हो, किसी भी प्रकार के पेस्ट से उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े. पेस्ट इन द सेंस रैट या फिर इंसेक्ट जो हमारे होते हैं. एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट in our crop, simply we can say that our crop is getting harm with due to the some rats and pests. तो उसका हमें पता कैसे लगा सकता है? सिंपली वी कैन से व्हाट आर द वार्निंग सिग्नल्स फॉर द पेस्ट्स. सबसे जो हमारी सिंपल बात है कि अगर हमारी क्रॉप के अंदर कोई पेस्ट्स हो गए हैं, कोई भी इंसेक्ट या रैट की कोई भी है, उसके अंदर मेन हमारे पास वार्निंग सिग्नल क्या होंगे? या तो हमारे पास क्या है, रैट ड्रॉपिंग होगी. We will find the rat dropping, either डेड और लाइव इंसेक्ट हमें मिलेंगे उसके अंदर.
we can find some cocoon and moreover some larva also. अगर हमें क्रोप के अंदर, हमारे ग्रेन्स के अंदर इनमें से किसी भी टाइप का सिंबल दिखाई देता है, दैट मीन्स आवर क्रोप इज गेटिंग harm or getting spoiled due to these pests or some rats and insect. Okay, so here just to protect our crop from the spoilage and the pest infestation, we should keep in mind some methods. So we will discuss what are those methods. मीन्स वो मेथड कौन से हैं जिससे हम अपनी क्रोप को स्पॉइलेज से या फिर पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचा सकते हैं. So see, our first point is heading. We can write that methods to prevent crop spoilage and pest infestation. मीन्स कौन से हम सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो क्रोप है वो स्पॉइल ना हो और उनके अंदर पेस्ट ना हो. हाउ वी कैन कंट्रोल द पेस्ट ऑल्सो. सो फर्स्ट मेथड ही ड्राई द crop properly in sunlight to reduce the moisture content. सो फर्स्ट मेथड क्या है कि हमारे पास जो ग्रेन्स है, जो क्रोप है, हमारे पास जो यील्डिंग हुई है हमें क्रोप की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्राई दैट. हमें उसको बिल्कुल सुखा लेना है. किस लिए हमें सुखाना है उसको सनलाइट के अंदर, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो कम हो जाए. ओके, सो सेकेंड मेथड इज grain should be stored in airtight container. In a cool or dry place. मीन्स हमें क्या करना चाहिए, अपने क्रोप को या ग्रेन्स को किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर हमें उसको स्टोर करना चाहिए. और जो हमारे एयर टाइट कंटेनर है, वी शुड कीप दोज एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, जहाँ पर भी ठंड, जहाँ ठंड भी हो, इतनी ज़्यादा गर्मी भी ना हो, मीन्स डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट जहाँ पर ना पड़ता हो, और सेकेंडली जहाँ पर जो ड्राई भी हो, जहाँ पर मीन्स मॉइस्चर ना हो, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए. ओके, सो अ थर्ड पॉइंट इज level of temperature and moisture should be maintained properly. मीन्स जो टेम्परेचर और मॉइस्चर मीन टू से जो नमी होती है हमारी, टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो लेवल है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, नॉट टू मच, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए. और लास्ट मेथड इज फोर्थ वन, ड्राइड नीम लीव्स and turmeric can be used to protect crop from pests. जनरली हम अपने घर पर भी देखते हैं कि
जो फार्मर हैं हमारे घर में वो क्या करते हैं, सिंपली दे जस्ट टेक द ड्राई नीम लीव्स एंड मैनी टाइम्स दे यूज द टर्मरिक पाउडर ऑल्सो to mix those turmeric powder and neem leaves into the crop or in the grain. And what is the main use to add dry neem leaves and turmeric? Just to prevent our crop from the pest, because these both things, neem leaves and turmeric powder, both things helpful to keep away the pests from the crop. Okay, so these are some methods by which we can protect our crop from the spoilage and the pest infestation. What is our first method? First क्या है हमारे पास कि जो हमारे क्रॉप की यील्डिंग है उसको हमें अच्छे से सुखा लेना है सनलाइट में, उसके मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देना है। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि दैट ग्रेन शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, जहाँ पर क्या है एयर की लीकेज ना हो, एयर टाइट कंटेनर में हमें इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद वेयर वी हैव टू कीप दैट, इट शुड बी कीप इन टू द ड्राई एंड कूल प्लेस। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर शुड बी मेंटेन प्रॉपरली, वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ऐसे भी ना हो कि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी ना हो कि टेम्परेचर बहुत कम हो। सेम थिंग वी कैन से अबाउट द मॉइस्चर ऑल्सो। एंड व्हाट इज़ लास्ट कि हम ड्राई नीम लीव्स या फिर टर्मरिक पाउडर को ऐड करके अपनी क्रॉप की यील्डिंग को बचा सकते हैं किससे, पेस्ट से, मीन्स रैट और इंसेक्ट से, बिकॉज वो हमारे टर्मरिक पाउडर और नीम लीव्स के कॉन्टैक्ट में इतनी जल्दी नहीं आते। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट that how we can increase our crop yielding, because we know that if we have to cultivate the crop in the same field year after year, it's obvious that the intake of nutrient will going to reduce. वो धीरे धीरे हमारे जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So here in this topic we will discuss that how the nutrient power is less and how we can increase the crop yielding in our field, and we have two main methods for that process which we have to discuss in this topic. See, let me write the name of the topic, increasing crop yields. See beta, how to increase crop yield? We know that our plants take in nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium from the soil. But if we are cultivating the plant in the same soil year after year, the supply of nutrient will decrease and subsequently the crop yielding will decreases. कि जैसे जैसे हमारी, अगर हम एक ही सोइल के अंदर हर साल ईयर आफ्टर ईयर सेम क्रॉप को हम उसके अंदर कल्टीवेट करते हैं, तो इन दैट सेंस क्या होगा कि हमारे सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होगी उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी क्रॉप यील्डिंग के ऊपर। हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो हम किस टाइप से अपने क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बचा सकते हैं, मोर ओवर हाउ वी कैन फर्टाइल आवर सोइल अगेन। तो यहाँ पर क्या है, simply we can write that continuous cultivation of crop in the same soil year after year the supply of nutrient decreases. और जैसे ही हमारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई डिक्रीज होगी, सब्सिक्वेंटली द क्रॉप यील्डिंग डिक्रीजेज। सब्सिक्वेंटली crop yielding, or we can say crop production
decreases. So how we can overcome this problem? हमें पता है कि एज वी हैव टू कंटिन्यू कल्टिवेट, अगर हम सेम सोइल के अंदर सेम टाइप की क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर हर साल हम उसके अंदर कल्टिवेट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हमारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। जैसे ही न्यूट्रिएंट की कमी होगी उसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि हाउ वी हैव टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास क्या है एंड व्हाट इज़ दैट सोल्यूशन? फर्स्ट इज़ दैट वी कैन रीप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इनटू द सोइल, कि हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं लाइक आई टॉक्ड अबाउट NPK, N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K stands for potassium, and moreover magnesium also. फर्स्ट मेथड की या तो हम क्या करें, इन सारे जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीप्लेनिश कर दें, रीप्लेनिश मीन से अगेन रिचार्ज कर दें। एंड टू रीप्लेनिश द सोइल वी हैव टू मेन मेथड्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस वेरी टॉपिक. व्हाट आर दोज टू मेथड्स? फर्स्ट इज फील्ड फैलोइंग एंड सेकेंड वन इज द क्रॉप यील्डिंग. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. Our first is field fallowing. See, it's very simple method. Field fallowing. Field fallowing में हमें सिंपली क्या करना है? We have to keep our field ब्लैंक और एम्प्टी फॉर सम टाइम. मीन्स 1 या 2 सीजन के लिए हम अपने खेत को बिल्कुल खाली छोड़ दें, उसके अंदर कोई किसी भी टाइप की क्रॉप का हम कल्टीवेशन ना करें या कोई भी क्रॉप प्लांट ना करें. उससे क्या होगा, जो हमारी प्रीवियस क्रॉप है लाइक वीट का सीज़न है, हमने वीट उगाई, वीट उगाने के बाद जो राइस की हमारी टर्न आती है उस टाइम में हम अपने खेत को खाली छोड़ दें. जो वीट के रिमेन्स पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने के बाद सोइल में मिक्स होकर उसके न्यूट्रिएंट को दोबारा से रीप्लेनिश कर देंगे. तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है हमारे न्यूट्रिएंट को रीप्लेनिश करने का, कि हम कुछ टाइम के लिए अपने खेत को खाली छोड़ दें ताकि वो अपनी जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है, जो न्यूट्रिएंट की कमी उसके अंदर ऑलरेडी हो चुकी थी, वो उसको मेंटेन कर पाए उस खाली टाइम पीरियड के अंदर. सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, क्रॉप रोटेशन. सेकेंड इज क्रॉप रोटेशन. Crop rotation mean to say in which we can grow the different type of crop in the same field. कि हमारे पास फील्ड सेम है, लाइक एक सीज़न में हमने उसके अंदर वीट की क्रॉप की है, इन द वेरी नेक्स्ट सीज़न हम उसके अंदर क्या करें, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट की खेती करें. लाइक वी कैन टॉक अबाउट द पीस एंड बीन्स, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट की हम उसके अंदर खेती कर सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द पल्सिस, हम बोल सकते हैं पल्सिस की खेती कर सकते हैं. क्या इसके अंदर बेनिफिट होगा कि जब हमने फर्स्ट सीज़न में वीट का कल्टीवेशन किया है अपने खेत के अंदर, वीट ने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट थे हमारे सोइल के अंदर उनको इनटेक कर लिया. अब हमारे सोइल के अंदर क्या हो गया, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई. तो इस कमी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो सेकंड सीज़न है उसके अंदर कोई भी लेग्यूम प्लांट का प्रोडक्शन करना चाहिए. इसमें क्या आ जाता है, हमारा पी की खेती आ जाती है, बीन्स की आ जाती है. ये सिंपली आप याद रख सकते हो कि कोई भी पल्सिस की खेती हमें कर लेनी है. क्यों हमें लेग्यूम प्लांट की करनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे लेग्यूम प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, जो रूट नोड्यूल्स हैं इनकी, द बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है. एंड दैट बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन को फिक्स करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन हेयर, बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारे पास, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. कहाँ पर पाया जाता है ये, इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स.
लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का मेन फंक्शन क्या है? टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देना। फिक्स इन द सेंस मीन्स द नाइट्रोजन विच इज़ फाउंड इन टू द एटमोसफेयर, दैट नाइट्रोजन इज इन द गैसियस फॉर्म बट आवर प्लांट कांट अब्जॉर्ब दैट इन दैट फॉर्म। गैसियस फॉर्म में हमारे जो प्लांट है उस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो इन दैट केस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन नाउ? नाइट्रोजन फिक्सेशन in which atmospheric nitrogen is fixed into the soluble form। आप soluble form भी लिख सकते हैं या फिर into the usable form which can be easily used by the plants। और हमें पता है कि हमारे प्लांट्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एज इट एज गेन या अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो उस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, हमें उसमें क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत होगी। एंड व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? जिसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सोल्यूबल फॉर्म के अंदर। सोल्यूबल फॉर्म में बिकॉज हमारे जो प्लांट्स हैं वो ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Okay, so with the help of nitrogen fixation we can easily replenish the nutrients which are decreased in our soil. So now our last topic of this chapter, that is animal husbandry. Last topic is the animal husbandry. व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इन दिस केस द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द फूड एंड द अदर पर्पजेज इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। सिंपली वी कैन से कि जब हम लार्ज अमाउंट में मीन्स लार्ज स्केल पर हमारे कोई भी एनिमल्स को हम रेयर करते हैं या पालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। रेयरिंग ऑफ animals on a large scale for food and other purposes। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एंड मोर ओवर इट इज़ द अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये भी एक टाइप का एग्रीकल्चर ही है, बट इन दिस केस वी हैव टू रियर द एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्रॉप के बारे में पढ़ा था। क्रॉप क्या था? दैट कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल। So what is animal husbandry here? The rearing of animals on a large scale as a source of food or we can say any another purpose। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? आप सभी ने देखा होगा दैट द रेयरिंग ऑफ कैटल ऑन अ लार्ज स्केल। जो डायरी हम कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो डायरी होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं? बड़े लार्ज अमाउंट में एनिमल्स की रेयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स जो डायरी फार्म्स जिसको हम बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग रेयरिंग ऑफ हनी बी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एपीकल्चर। रेयरिंग ऑफ हनी बी क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा फील्ड्स के अंदर कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं एंड इन दोज बॉक्सेस हनी बीज आर देयर टू प्रिपेयर द हनी, कि जो शहद है, जो हनी है, उसको प्रिपेयर करने के लिए बॉक्सेस में हनी बी की रेयरिंग की जाती है। एंड वी कैन सी दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ बॉक्सेस आर देयर इन द field। Okay, so that's why that is the animal husbandry। rearing of honey bee is called apiculture। the term name is apiculture। same thing rearing of fish। आप सभी ने देखा होगा कि मछली पालन भी होता है। rearing of fish,
इसको हम एक्वा कल्चर भी बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एक्वा कल्चर बिकॉज ये वाटर के अंदर करते हैं हम। एक्वा मीन टू से वाटर, एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, सभी ने देखा होगा पोल्ट्री फार्म की जो हैन है एग प्रोडक्शन के लिए, मीट के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर हैन का रियरिंग करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज द पोल्ट्री फार्म। मोस्टली सब बच्चे उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि जब हम बड़े लार्ज स्केल पर एनिमल्स को रियर करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड है हमारा डायरी फार्म की बात कर सकते हैं, एपीकल्चर, पीसीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर रियरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं? Rearing include the caring of animals for their breeding and for their feeding, कि उनके खाने पीने के लिए उनकी केयर करनी है, उनके ब्रीडिंग सिस्टम के लिए उनकी केयर करनी है, उनकी किसी भी बीमारी में, किसी भी डिजीज़ के टाइम हमें उनकी केयर करनी है। मोरोवर उनके सैनिटेशन का ध्यान भी हमें ही रखना है। दैट मीन्स वही प्रोसेस क्या होती है, रियरिंग होती है। जैसे घर में एक माँ अपने बच्चे को रियर करती है, अपने बच्चे को पालती है, सेम थिंग यहाँ पर हमें एनिमल्स के केस में भी करना पड़ता है कि जैसे एक मदर अपने बच्चे का ध्यान रखती है, सेम थिंग कि जो भी हमारे पास रियरिंग कर रहा है, कोई भी किसी भी टाइप की जो फार्मिंग कर रहा है यहाँ पर, लाइक कोई हनी बी का कर रहा है, कोई फिश फार्मिंग कर रहा है, सेम तरीके से उसको भी क्या करना पड़ता है, उसकी रियरिंग या देखभाल करनी पड़ती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो soon we will start the next chapter according to the syllabus. Till then, thank you and have a nice day.